how many types of polarity do we have? Namely, on the one hand we had USA, on the other hand we had United States of America, China, India, Japan, Russia, Germany, France. चलो फिर स्टार्ट करते हैं यूनिपोलैरिटी एंड अमेरिकन हेजेमनी. बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको पढ़ने में बहुत मजा भी आएगा और अभी तक उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें मैं आपके साथ कर भी चुका हूं, इसलिए आप बड़ा एंजॉय करेंगे. Unipolarity and American hegemony and US hegemony. क्या है यूनिपोलैरिटी और अमेरिकन हेजेमनी? थोड़ा इस तरीके से समझिए. यूनिपोलैरिटी एंड अमेरिकन हेजेमनी. पहले समझो कि यूनिपोलैरिटी किसको कहते हैं. तो यूनिपोलैरिटी में मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर याद होगा, कि पोलैरिटी किसको बोलते हैं. पोलैरिटी मैंने आपसे कहा था कि पोलैरिटी इज अ ज्योग्राफिकल टर्म. इट रेफर्स टू distribution of magnetic forces on the earth. So we have North Pole and South Pole, that signifies distribution of magnetic forces on the earth. On the basis of this concept, how many types of polarity do we have in international politics? In international politics, we have unipolarity, we have bipolarity, and we have multipolarity. Bipolarity, it refers to the presence of two poles in international politics. That is, powers in international politics have been distributed between two poles. Namely, on the one hand we had USA, on the other hand we had USSR. Multiple poles. जो अभी present time में world emerge हो रहा है और next 3, 4, 5 years में world, 10 years में world emerge होगा, in which you will have multiple poles. So powers in international politics would be distributed among multiple poles, not one pole, not two pole, but among multiple poles. For example, United States of America, China, India, Japan, Russia, Germany, France, all these are poles of international politics, or all these will be the poles of international politics in coming years or coming decades. And then we have the situation of unipolarity. So what do we mean by unipolarity? Unipolarity means that powers in international politics is being concentrated into a single pole. When power gets concentrated into a single pole, such situation in international politics is known as unipolarity. Such situation in international politics is known as unipolarity. Here power gets concentrated into a single pole. एक पोल में international politics में पूरा का पूरा power, it gets concentrated into a single pole, and such a situation is called as unipolar system. Unipolarity emerged कब हुआ? In the immediate aftermath of disintegration of Soviet Union. When Soviet Union disintegrated, then United States of America emerged as the only superpower of the world. After Soviet disintegration, United States of America, USA, emerged as the only superpower of the world. और जब United States of America emerged as the only superpower of the world, it dominated political scenario of the world. It dominated international politics of the world. The United States of America at that point of time was called by French foreign minister as hyperpower. As hyperpower or hegemon. Now what is the meaning of hegemony? अभी तक के मैं फिर से दोबारा एक क्विकली रिकैप्चुलेट करता हूँ. मैंने आपसे क्या कहा? That polarity is a geographical term which is used to denote distribution of magnetic forces on the earth. So we have two types of poles, namely North Pole and South Pole. Unipolarity, what do we mean by unipolarity? When power gets concentrated into a single pole, such a situation is known as unipolarity. Now this situation of unipolarity, it emerged after disintegration of Soviet Union
in 1991. सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ and United States of America emerged as the only superpower of the world. When all the powers in international politics gets converged into a single pole, such a situation is known as unipolarity. So USA, after disintegration of Soviet Union in 1991, immediately emerged as the only superpower of the world, and United States of America was called by French foreign minister as hyperpower or hegemonic power. Now what do we mean by hegemonic power? हेजेमनी से हम यहाँ पर क्या समझते हैं, ये भी देखते हैं कि हेजेमनी क्या है. हेजेमनी से हम समझते हैं यहाँ पर hegemony is a situation. Hegemony, it is a condition in which there is only one superpower in the world. Now this superpower cannot be challenged either alone और बाय बैंडवैगनिंग. बैंडवैगनिंग एक टर्म होता है जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यूज होता है. क्या मतलब होता है उसका बताता हूं. दिस सुपर पावर कैन नॉट बी चैलेंज्ड बाय कंट्रीज ईदर अलोन और कैन नॉट बी चैलेंज्ड बाय कंट्रीज ईदर अलोन और बाय बैंडवैगनिंग और बाय बैंडवैगनिंग. मतलब अकेले भी इसको तुम चैलेंज नहीं कर सकते हो. बैंडवैगनिंग का मतलब होता है 3-4 कंट्रीज आपस में मिल करके भी इसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं. जब कोई सुपर पावर होता है, जब कोई इकलौता सुपर पावर होता है पूरे वर्ल्ड का, तो वो इस पोजीशन में होता है कि वो हिस्ट्री के कोर्स को चेंज कर दे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के कोर्स को चेंज कर दे. So this hegemonic power, it cannot be challenged either alone or by bandwagoning, by joining hands with each others. एक दूसरे के साथ हाथ मिला करके भी तुम इस सुपर पावर को नहीं कंट्रोल कर पाओगे. इसके क्या फीचर्स होते हैं हेजेमनी के? पहला बात हेजेमनी का समझिएगा, that this hegemonic power, it has the responsibility to ensure peace. This superpower has the responsibility to ensure peace in international arena. रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. एंड इट एक्ट्स लाइक अ ग्लोबल पुलिसमैन. फॉर एग्जाम्पल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इट एक्ट्स एज अ ग्लोबल पुलिसमैन. क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है, ये देखने का काम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का होता है. इसीलिए आप नोटिस करेंगे, मान लिया कहीं पर कोई ऐसा डेवलपमेंट हुआ है जो डेमोक्रेसी के एडवर्स है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहता है कि हमारी नज़र है. अरे भाई तुम कौन होते हो ये बोलने वाले कि हमारी नज़र है? क्यों? बिकॉज यूएसए इज द ओनली सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड. यूएसए इज इन अ पोजीशन टू इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन सो मेनी वेज. तो हेजेमॉन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड which is in a position to influence the world in so many ways. Influence the world. आप कहेंगे कि सर एक हेजेमॉन पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस कैसे करता है? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके थ्रू एक हेजेमॉन पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करता है. अभी उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. एक हेजेमॉन बनने के लिए क्या कंडीशन होता है. इतना आसान नहीं है कि कोई भी एक हेजेमॉन बन जाएगा. एक हेजेमॉन बनने के लिए कुछ कंडीशंस होने चाहिए. अगर वो कंडीशंस है, देन ओनली अ कंट्री कैन बी टर्म्ड एज अ हेजेमॉन. अगर वो कंडीशन नहीं है, देन अ कंट्री कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ हेजेमॉन. रिमेंबर दिस पॉइंट. हेजेमॉन बनने के लिए, इकलौती सुपर पावर बनने के लिए, एक अनचैलेंज्ड सुपर पावर बनने के लिए, न्यूमरो यूनो पावर बनने के लिए पूरे वर्ल्ड का, अ कंट्री नीड्स टू हैव सर्टेन स्पेशल ट्रेट्स. अगर वो स्पेशल ट्रेट नहीं है तो तुम वर्ल्ड के इकलौते सुपर पावर बन ही नहीं पाओगे. समझ रहे हो मेरी बात? भूटान कभी इकलौता सुपर पावर वर्ल्ड का बन सकता है क्या? नेपाल कभी बन सकता है क्या?
एक सुपर पावर बनने के लिए जो खास बात चाहिए वो कौन से खास कंडीशन होते हैं, आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं. So in order to become a hegemon, a country needs to fulfill certain conditions. What are those conditions which must be needed to become a hegemon? Conditions to become a hegemon. पहला, सबसे first and foremost condition to become a hegemon is hegemonic power must have a great economic base. It must have a great economic base. It must be a great economic power. समझो मेरी बात. अमेरिका की हेजेमनी को लेकर के भी कई तरह के डाउट है. एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है that American hegemony is undisputed. There is absolutely no challenge to American hegemony. Second school of thought says that American hegemony is not unchallenged. There are many challenges before American hegemony in today's world. And third school of thought says that United States of America is still the numero uno power of the world. It is still the most important power of the world. It is still the only superpower of the world. But cracks are visible in American hegemony. क्रैक्स दिख रहा है अमेरिकन हेजेमनी. एक कहता है कि बहुत सारे लोग चैलेंज कर रहे हैं, कहता है नहीं क्रैक्स केवल दिख रहा है, हेजेमनी तो अभी भी है, हेजेमॉन तो अभी भी है. और एक कहता है कि नहीं, इट इज द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड. तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या कोई भी हेजेमॉन बनने के लिए क्या कंडीशन है, कैसे कोई एक कंट्री हेजेमॉन बनती है. इस बात को याद रखिए कि बिफोर 1914 दुनिया में इकलौती सुपर पावर हुआ करती थी एंड दैट वाज ब्रिटेन. So the sun never used to set in British Empire. British used to control almost half of the world. Half of the world used to be controlled by British. And then United States of America emerged as the superpower of the world along with Russia. And after disintegration of Soviet Union, United States of America emerged as the only superpower of the world. So what are the conditions which must be satisfied for a country to become the only superpower of the world? क्या इकलौता कंडीशन ये इनफ है that a country is a great economic power? It is an important determinant, but it is not the sole determinant. अगर आपकी इकोनॉमी बहुत अमेजिंग है, दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी है, then also you cannot become, a country cannot become a hegemon. It must be a great military power. It must be a great military power. Military power. लेकिन क्या ये इनफ है कि ये कंट्री ग्रेट मिलिट्री पावर है तो हेजेमॉन बन जाएगा? ना, इनफ नहीं है. क्या हेजेमनी के लिए जरूरी है? तो जो ग्रामसी ने कहा है, एंटोनियो ग्रामसी, ही टॉक्ड अबाउट मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट. एंटोनियो ग्रामसी ने कहा, जो लोग ग्रामसी नहीं अभी तक जिन लोगों ने पढ़ा है वो आगे पढ़ेंगे. एंटोनियो ग्रामसी ने कहा कि कंसेंट मैन्युफैक्चर किया जाता है. तो उस मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं दैट इन ऑर्डर टू बी एक्सेप्टेड एज द ओनली सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, अ कंसेंट मस्ट बी मैन्युफैक्चर्ड so that people can have faith in the leadership of a single superpower. तो इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है, it must be an ideological superpower. An ideological superpower. इसकी ideology must be the most accepted ideology of the world. ये दुनिया के माइंड, कल्चर और वे ऑफ लाइफ को शेप करने वाले पोजीशन में हो. It must be a cultural superpower. In order to be called as the only superpower of the world, it must be a cultural superpower. अगर आप cultural superpower हैं तो फिर ठीक है, तब तो हेजेमनी तुम्हारी हो सकती है. Cultural superpower मतलब your way of life is the most accepted way of life in the world. For example, today American way of life is the most accepted way of life in the world. People use American dress, people use American phone, people use American technology, people use American food. So America influences you in so many ways, in so many ways. So it must be a great cultural power. Then
इतना ही इनफ नहीं है, उसका कल्चर भी सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड होना चाहिए। इट मस्ट हैव द ग्रेटेस्ट कंज्यूमर ब्रांड्स ऑफ द वर्ल्ड। ध्यान रखना इस बात को, इट मस्ट हैव द ग्रेटेस्ट कंज्यूमर ब्रांड्स ऑफ द वर्ल्ड। आप कहेंगे कि क्या एक हेजेमनी के लिए ये जरूरी है कि एक ग्रेटेस्ट कंज्यूमर ब्रांड होना चाहिए? बिल्कुल। एप्पल एप्पल नहीं है केवल, एप्पल वो जो आइडिया ऑफ अमेरिका है ना, वो तुम्हारे माइंड में विल बी डीपली एम्बेडेड बिकॉज ऑफ एप्पल। जब तुम एप्पल यूज करते हो ना, मैं तो यूज नहीं करता हूं, आईपैड मैंने उसका यूज किया है बहुत पहले से, और बाकी मैं उसका फोन यूज नहीं करता हूं। लेकिन जिन्होंने भी एप्पल का फोन यूज किया है वो मेरे से बार बार बोलते रहते हैं कि भाई एप्पल का फोन खरीद लो, एप्पल का फोन खरीद लो। वो एप्पल केवल फोन नहीं है, एप्पल एक आइडिया है। वो आइडिया क्या है? वो आइडिया एक्सेलेंस का है। जब तुम एप्पल का फोन खरीदते हो ना, तो क्वेश्चन नहीं करते हो, समझ रहे हो? तुम क्वेश्चन करने में अपना तौहीन समझते हो। तुम पैसा नहीं कम करवाते हो एप्पल के शोरूम में जाकर के कि बगल में एसएचओ हमारे अंकल हैं, उनसे पैसा कम करवा लो। नहीं, एप्पल का फोन खरीदने जा रहे हो, तुम्हारा कंधा ऐसे ही रहता है, और तुम एप्पल का फोन खरीदने जाते हो तो तुमको पैसा कम करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यह है ग्रेटेस्ट कंज्यूमर ब्रांड। तुम खुद ही पूरा पैसा देते हो जितना वो मांगता है। तुम्हारे मन में रहता है 2-4 हजार और मांगे तो दे दूंगा इसको, पैसा कम नहीं करवाऊंगा। तुम उसमें अपनी तौहीन समझते हो, समझ लो? ये ग्रेटेस्ट कंज्यूमर ब्रांड की निशानी है, समझ गए? जब तुम शूज पहनते हो ना, जो नाइकी का शूज पहनते हो, तो वो नाइकी केवल नाइकी नहीं है, वो नाइकी एक इमोशन है। एप्पल केवल एप्पल नहीं है, वो केवल फोन नहीं है, इट इज एन इमोशन। इट इज द रेप्लिका ऑफ अमेरिकाज ब्रांड वैल्यू। इट रिप्रेजेंट्स अमेरिका। वो एप्पल तुम नहीं खरीद रहे हो, तुम बेसिकली अमेरिका का की ब्रांडिंग अपने दिमाग में कर रहे हो। तुम ये मान रहे हो कि जो अमेरिकन चीज है वो सबसे बेस्ट होती है पूरे वर्ल्ड में। समझ लो मेरी बात? इतना ट्रस्टेड ब्रांड होता है उनका, उनके ब्रांड पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है जब तुम उनके शूज खरीदने जाते हो तो, समझ गए? जब तुम उनके एपरल्स खरीदने जाते हो तो इट मस्ट हैव द ग्रेट कंज्यूमर ब्रांड ऑफ द वर्ल्ड। तो सुपर पावर बनते हो। ये नहीं रशिया की तरह से कि बहुत हथियार है, दुनिया बर्बाद कर देंगे, तो उससे सुपर पावर थोड़ी बन जाओगे तुम। तुमको एक रोग नेशन स्टेट माना जाएगा। रोग, रोग समझ रहे हो? रोग, ROGUE, पागल, डिस्टर्ब्ड, कि तुम दुनिया खत्म कर दोगे, बात बात पर यही बोल रहे हो कि वर्ल्ड फिनिश कर दूंगा, फिनिश ऑफ कर दूंगा। ये ब्रांडिंग होती है सुपर पावर बनने की। तो इकलौती सुपर पावर, जब तुम हेजेमोनिक पावर बनते हो ना, तो ये ब्रांड है, ब्रांड। ग्रेटेस्ट कंज्यूमर ब्रांड जब होता है तो इंसान उस ब्रांड के साथ अपने आप को एसोसिएट करता है, समझ रहे हो? देन a hegemon must be, its currency must be the most preferred currency of currency must be the most preferred currency of the world। दुनिया की सबसे प्रेफर्ड करेंसी में से एक करेंसी, करेंसी मस्ट बी द मोस्ट प्रेफर्ड करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। आप कहेंगे कैसे? अमेरिकन डॉलर इज द मोस्ट प्रेफर्ड करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का मैक्सिमम इंटरनेशनल ट्रेड अमेरिकन डॉलर में होता है। लेकिन ये इनफ नहीं है, अभी और भी बहुत सारी बात है। इट मस्ट बी द टेक सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। समझ गए? इकोनॉमिक और मिलिट्री तो ठीक है, क्या तुम टेक सुपर पावर हो? टेक्नोलॉजी के फील्ड में अमेरिका में जो काम हो रहा है ना, दैट इज सिंपली ब्रेथ टेकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में। बट दैट इज नॉट इनफ। इट मस्ट हैव द ग्रेटेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। ग्रेटेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज, समझ रहे हो मेरी बात? ग्रेट यूनिवर्सिटीज है अमेरिका में। अमेरिका की ब्रांडिंग का शशि थरूर का कहना है कि what one Harvard University has achieved for American hegemony, numerous military campaigns have not achieved। एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने जो अचीव किया है ना अमेरिकन हेजेमनी के लिए, न्यूमरस मिलिट्री कैंपेन्स ने अचीव नहीं। आप कहेंगे कैसे? भाई इससे बड़ा ब्रांड क्या है कि दुनिया में जो जहां भी जो एलीट होगा उसका बच्चा अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में पढ़ता है। क्या इससे बड़ी ब्रांडिंग चाहिए आपको किसी कंट्री की? समझ रहे हो मेरी बात? तुम ब्यूरोक्रेटिक एलीट बन जाओ, तुम IAS में चले जाओ, आप नोटिस करेंगे कि मैक्सिमम IAS ऑफिसर्स के बच्चे
अमेरिकन यूनिवर्सिटी से पढ़े होते हैं। जो पढ़े लिखे पॉलिटिशियंस होते हैं उनके बच्चों को देखो, अमेरिकन यूनिवर्सिटी से पढ़े होते हैं। बिजनेस एलीट 100% में से 99% के बच्चे अमेरिकन यूनिवर्सिटी से पढ़े होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? दे हैव द ग्रेटेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। वहां पढ़ना अपने आप में सपना होता है। जब तुम यूएस में जब तुम आईएएस बनते हो ना, तो आईएएस बनने के बाद जब तुम्हारी सीवी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लगा हुआ होता है, मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम केनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तो वो तुम्हारी सीवी में 4 चांद लगाने का काम करता है। ये होती है ब्रांडिंग। बताना नहीं है तुमको कि मैं नंबर 1 पावर हूं, वर्ल्ड मानता है कि तुम नंबर 1 पावर हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट मस्ट बी इन अ पोजिशन टू अट्रैक्ट द बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट मस्ट बी इन अ पोजिशन टू अट्रैक्ट द बेस्ट and the brightest of the world। बेस्ट और ब्राइटेस्ट को ब्राइटेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, किस तरीके से तुम बेस्ट और ब्राइटेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को अट्रैक्ट करते हो हिंदुस्तान में, जो स्पेशली इन द फील्ड ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। जो बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट टैलेंट होता है ना साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में, दुनिया के किसी भी कोने में, उसका एकदम लॉजिकल डेस्टिनेशन होता है यूएस यूनिवर्सिटीज। वो जाता ही अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में। बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन जो होगा ना, एकदम ऐसा होगा कि देखने के बाद लगे कि जीनियस, लाइट निकल रहा है उस आदमी से, वो आपको अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में उसका अल्टीमेट गोल होगा, सपना होगा। 99% केसेस में, चाहे हिंदुस्तान हो या चाइना हो या कोई भी कंट्री हो, उसको जाना अमेरिका ही है पढ़ाई करने के लिए। तो अमेरिका की हेजेमनी का एक सबसे बड़ा कारण है, इट इज एबल टू अट्रैक्ट द बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपको पता है कि 5% अमेरिकन पढ़ाई करते हैं। 95% जो अमेरिकन होते हैं ना, वो पढ़ाई लिखाई भी नहीं करते हैं, लेकिन वो जो 5% होते हैं ना, पर स्मार्ट होते हैं, और प्लस तो बाहर से वो दुनिया के बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट करते हैं। अमेरिकन अपने देश में, पता है कि जिसको बुलाते हैं उसको भी पूरा चुन करके बुलाते हैं, किसको हमारे देश में आना चाहिए। अगर तुम अमेरिका के मान लिया टॉप 20 यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, तुम जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आते हो ना, तुम जब यूएस में पढ़ाई करने जाते हो, तो वीजा ऑफिसर तुमसे, और हेजेमनी बनने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इट मस्ट बी द नर्व सेंटर ऑफ इनोवेशन। इट मस्ट बी द नर्व सेंटर ऑफ इनोवेशन। समझ गए? नर्व सेंटर ऑफ इनोवेशन। दैट मेक्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्पेशल। That makes US most dominant power of the world। समझ गए? अब आप भी सोच रहे होंगे कि सर अब बस करो, अब और कितनी तारीफ करोगे। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, ये सब रियलिटी है जो मैं आपको बता रहा हूं। इट इज द नर्व सेंटर ऑफ इनोवेशन। किसी भी फील्ड में जो सबसे कटिंग एज रिसर्च हो रहा है ना, वो अमेरिका में हो रहा है। दैट मेक्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सो स्पेशल। ये है उसके हेजेमनी का कंडीशन। एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है ना, ये हमारे यहाँ लैकिंग है। हमारे यहाँ की सोसाइटी एंटरप्रेन्योर्स को रिस्पेक्ट नहीं देती है। इंडिया की सोसाइटी में अगर तुम एंटरप्रेन्योर हो ना, तो शादी भी नहीं होगी अगर तुम लड़के हो तो। अगर तुम एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेस करना चाहते हो, तो शादी होना बहुत मुश्किल है हिंदुस्तान की सोसाइटी में। समझ गए? तो एंटरप्रेन्योरशिप को एक रिस्पेक्ट देना जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली नेक्स्ट लेवल पर तो वही ले जाएगा ना। इलॉन मस्क और बिल गेट्स टाइप के लोग ही हमको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। यूएस हेजेमनी का ये स्टार्टिंग कैसे हुई? ब्रिटेन यूज्ड टू बी द हेजेमोनिक पावर ऑफ द वर्ल्ड। ब्रिटेन यूज्ड टू बी द हेजेमोनिक पावर ऑफ द वर्ल्ड। और बड़े लंबे समय तक ब्रिटेन यूज्ड टू बी द हेजेमोनिक पावर ऑफ द वर्ल्ड टिल द बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। ब्रिटेन वर्ल्ड का इकलौता हेजेमोनिक पावर हुआ करता था। लेकिन इसी समय एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ पूरे वर्ल्ड में। इंपॉर्टेंट इवेंट क्या था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अंडर मोनरो डॉक्ट्रिन, यूएस ने कहा कि हमको कॉन्टिनेंटल राइवलरी से कोई लेना देना नहीं है। And United States of America started following isolationist policy।
समझ गए? एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देखना हिस्ट्री वाले पार्ट से क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा दे रहा हूं, क्या पता कुछ आ जाए. United States of America started following its isolationist foreign policy under Monroe Doctrine. क्या कहा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने? That we are not interested in the continental rivalry that is going on in Europe. And at that point of time, United States of America concentrated on its economy only. And in the second half of 19th century, United States of America was able to witness spectacular economic growth. अमेरिका का जो ग्रोथ हुआ लास्ट के 50 साल में, लास्ट के 30-40 सालों में, जो 19th सेंचुरी में हुआ, दैट वाज स्पेक्टेकुलर इकोनॉमिक ग्रोथ. और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बाय द टाइम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगैन, it was in a position to surpass the combined production of both Britain and Germany. In fact, it was able to surpass the combined GDP also of Britain and Germany. और तब तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका had emerged as a very powerful country, both economically and militarily. US did not participate in First World War, तो US की इकोनॉमी पे कोई फर्क तो पड़ा नहीं. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन, ही इमर्ज्ड एज द लीडिंग फिगर आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1. उसके बाद जब ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस हुई तो उसमें वुडरो विल्सन का बहुत बड़ा रोल था. लेकिन अब भी अपने आप को अमेरिका ने कॉन्टिनेंटल राइवलरी से दूर रखा कि इस मेस से दूर रहो और अपने आप को इकोनॉमिकली ग्रो करो पहले. चाइना इसी स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है. Then Second World War happened, and after Second World War, United States of America emerged as truly the lone superpower of the world. क्यों? क्योंकि यूएस के पास उस समय केवल यूएस के पास ही न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी थी. लेकिन 1949 में रशियंस वर एबल टू steal nuclear technology and they were also able to manufacture their own nuclear bomb. तो वहां से यूएसए और रशिया के बीच में मिलिट्री पेरिटी आ गई थी. उससे पहले तक 1945 से लेकर 1949 तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इकलौता सुपर पावर था. लेकिन रशियंस ने जब न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लिया इन 1949, तो रशियंस came into the position of challenging United States of America militarily, and they were able to develop military parity with United States of America, क्योंकि दोनों के पास अभी आज के डेट में न्यूक्लियर वेपन हो गया था. तो यूएस के इस राइज में बहुत बड़ा रोल था. पहला इमिग्रेंट का बड़ा रोल था, दूसरा उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उसका बड़ा रोल था, और तीसरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राइज में उनकी आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी का बड़ा रोल था. दैट दे रिमेन्ड अलूफ फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल पॉलिटिक्स एंड दे वर एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर इकोनॉमीज. इसीलिए जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो दे इमर्ज्ड एज द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड. दे इमर्ज्ड एज क्योंकि इकोनॉमिकली दे हैड ऑलरेडी सरपास्ड both Britain and Germany, the leading industrial nations of the Europe, and that is how United States of America emerged as the superpower. क्या है American hegemony after disintegration of Soviet Union? United States of America emerged as the only superpower in 1991 when Soviet Union disintegrated. 1991 onwards. American President George W. Bush Sr. talked about New World Order, and he said that now the New World Order has arrived in 1990, and this New World Order will be based upon three things. 1. Democracy. 2. Economic growth and prosperity. And 3. Economic growth and prosperity. 3. Respect for human rights. Then American unilateralism in many parts of the world began. USA's unilateralism
मतलब USA started taking decisions alone. So American unilateralism began in many parts of the world. In many parts of the world. अब यहां पर दो बातें हुई. पहली बात यह हुई that American unilateralism began. America was the only superpower of the world and it came to dominate international politics in many ways. और उसके पीछे कई रीजन है that why did United States of America dominated international politics. उसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह यह है कि 1991 के बाद across the world liberalization, privatization and globalization was adopted. Liberalization, privatization and globalization was adopted. LPG was adopted. जब LPG का adoption हुआ after 1991, तो American MNCs they dominated इकोनॉमिक लैंडस्केप ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि उस समय 50 to 60% MNCs दे बिलोंग टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ था तो लगभग आधे से ज़्यादा MNCs तो अकेले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हुआ करती थी. और इस हेजेमनी के बड़े फार रीचिंग कंसिक्वेंसेस हमें देखने को मिलते हैं. ये हेजेमनी हमें कल्चरल स्फीयर में भी देखने को मिलता है, इकोनॉमिक स्फीयर में भी देखने को मिलता है, मिलिट्री स्फीयर में भी देखने को मिलता है. मल्टीपल लेवल पर इस हेजेमनी को आज के डेट में हम देख रहे हैं. फॉर एग्जांपल, डॉलर इज द मोस्ट प्रेफर्ड करेंसी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. अब सारे वर्ल्ड को ट्रेड डॉलर में ही करना है. इसकी सबसे बड़ी इसका रेमिफिकेशन क्या होता है, दैट यू विल ऑलवेज रिमेन एट द मर्सी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. कभी भी आपके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस इम्पोज किया जा सकता है. ये सबसे बड़ी समस्या होती है इस चीज की, because entire international trade it takes place in dollar only. अमेरिकन MNCs का लार्ज प्रेजेंस हर कंट्री में होने का सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि वो केवल अपने होस्ट कंट्री के डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसीज को बहुत सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करने वाले पोजीशन में होती है. अब आज के डेट में इमेजिन करो द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट एप्पल हैज स्टार्टेड मेकिंग इन इंडिया. आपको अंदाजा नहीं है कि आज के डेट में फ्यूचर में जैसे जैसे एप्पल जैसी कंपनी का साइज बढ़ता रहेगा, $2 ट्रिलियन की कंपनी का, फ्यूचर में क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ होने की पॉसिबिलिटी है, क्या कुछ होने की प्रोबेबिलिटीज है. तो जो 1991 के बाद अमेरिकन हेजेमनी स्टार्ट हुआ, दैट इम्पैक्टेड द वर्ल्ड इन मेनी वेज. बाइपोलैरिटी तो खत्म हो गया, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसमें दूसरा चैलेंज ये स्टार्ट हुआ कि वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में हमें कन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं आज के डेट में. इसीलिए जॉन लुइस गैडिस ने ये बात कही थी दैट वी हैव किल्ड वन बिग पाइथन एज इन द फॉर्म ऑफ सोवियत यूनियन, बट वी हैव लेट लूज थाउजेंड्स ऑफ पॉइजनस स्नेक्स इन द वर्ल्ड एंड टुडे द वर्ल्ड हैज बिकम अ मोर डेंजरस प्लेस टू लिव इन टू. यह है अमेरिकन हेजेमनी का इंपैक्ट. इतनी बातें लिख लीजिए, पहले, उसके बाद फिर से क्लियर करता हूं. LPG बोलते हैं बेटे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को. ठीक है, इसको बोलते हैं LPG. मतलब सबकी इकोनॉमी लिबरलाइज हुई. लिबरलाइज होने के बाद क्या होगा, सबकी इकोनॉमी में कंट्रीज में प्राइवेटाइजेशन होना स्टार्ट हो गया और सबने अपने आप को ग्लोबलाइजेशन के फोर्सेस से कनेक्ट करवा दिया, टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट करवा दिया. हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थियरी केम इनटू बीइंग. थोड़ा सा समझ लीजिए हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थियरी क्या है. एक साल में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, आगे आपको डिटेल में समझाऊंगा. हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थियरी बोलते हैं, थियरिस्ट ऑफ हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थियरी आर ऑफ द व्यू दैट प्रेजेंस ऑफ अ हेजेमॉन इज गुड फॉर द वर्ल्ड, गुड फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. इनका ऐसा कहना है कि जो एक प्रेजेंस होता है हेजेमोनिक पावर का वर्ल्ड में, वो वर्ल्ड के लिए एक बड़ी अच्छी चीज होती है. इनफैक्ट presence of a hegemon, it brings stability in the system. It is because of the presence of hegemon that international arena becomes more stable.
international arena, it becomes more stable. There are less conflicts in international arena because of the presence of hegemon. तो हेजेमॉन का प्रेजेंस बहुत सारी चीज़ों को स्टेबल करता है. हेजेमॉन का प्रेजेंस कन्फ्लिक्ट को मिटिगेट करता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में. तो हेजेमोनिक स्टेबिलिटी के थियरिस्ट का कहना है कि इट्स अ वेरी गुड आइडिया दैट राइट नाउ वी हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ हेजेमॉन इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. अगर एक ऑल पावरफुल कंट्री होगा तो दो कंट्री, मान लिया छोटी कंट्री आपस में लड़ाई कर रही है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पुलिसमैन बन करके कहेगा ना कि तुम दोनों आपस में लड़ाई मत करो, लड़ाई करोगे तुम दोनों के ऊपर सैंक्शन लगा दूंगा. तो हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थियरी के स्कॉलर्स का ये कहना है कि ये बड़ा अच्छा आइडिया है, ये एक बड़ी अच्छी चीज है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक हेजेमॉन का प्रेजेंस है. क्या है ये प्रीएम्प्टिव वॉर? तो ये प्रीएम्प्टिव वॉर ये कहता है कि जो वॉर है उसको प्रीएम्प्ट बेसिकली किया है. समझ रहे मेरी बात? प्रीएम्प्टिव वॉर कहता है कि मान लिया मेरे को ये लगता है दो प्लेयर हैं ए और बी. ए को ये लगता है कि बी मेरे ऊपर अटैक करने वाला है, करेगा कि नहीं करेगा वो बात की बात है. ए को लगता है कि बी मेरे ऊपर अटैक करने वाला है, तो बी मेरे ऊपर अटैक करे इसका मैं इंतजार किए बिना मैं पहले ही बी पर अटैक कर दूंगा. समझ रहे हो? अगर मुझे ये लगता है कि मेरे ऊपर बी अटैक करने वाला है तो बी अटैक करेगा या नहीं करेगा वो बात की बात है, मैं उस पर पहले से अटैक कर दूंगा. अमेरिका ने इस वॉर का नाम दिया preemptive war, and this preemptive war has also been criticized by a number of American scholars, and the most notable of American scholar has been Noam Chomsky. Noam Chomsky ने कहा the world has rejected moral leadership of United States of America. बहुत सारी ऐसी बातें थी इस अमेरिकन यूनिलेटरलिज्म की वजह से that was not liked by even American supporters. मतलब बेसिकली उन्होंने कहा कि ये जो अमेरिका का प्रोजेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी है, जिसमें हर कंट्री को अमेरिका गन पॉइंट पर ये कह रहा है कि तुम डेमोक्रेसी अडॉप्ट करो और नहीं तो सैंक्शन लगा दूंगा, नहीं तो तुम्हारी कंट्री में प्रॉब्लम क्रिएट कर दूंगा. इस बात का बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ है. स्कॉलर्स ने ये कहना शुरू किया कि दैट इज नॉट जस्टिफाइड. अमेरिका जिस तरीके से फोर्स कर रहा है डेमोक्रेसी को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के ऊपर, उसको एक्सेप्ट करना विल नॉट बी पॉसिबल. क्यों इसको एक्सेप्ट करना विल नॉट बी पॉसिबल? इसको एक्सेप्ट करना इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि हर कंट्री के अपने वैल्यूज हैं. मलेशिया ने कहा, मलेशिया टॉक्ड अबाउट एशियन वैल्यूज. बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज ने यह कहा दैट दिस प्रोजेक्ट ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी एट गन पॉइंट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, दैट इज नॉट इन कॉन्सोनेंस विथ आवर कल्चर. हमारा कल्चर डिफरेंट है. तो इस तरीके के क्रिटिसिज्म भी आए हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एक अमेरिकन प्रोजेक्ट क्या है? अमेरिकन प्रोजेक्ट है कि अक्रॉस द वर्ल्ड किसी भी तरीके से डेमोक्रेसी को एक्सपैंड किया जाए, डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जाए. व्यूज ऑफ अमेरिकन सपोर्टर्स अबाउट अमेरिकन हेजेमनी. सपोर्टर्स का क्या व्यू पॉइंट है? व्यूज ऑफ अमेरिकन सपोर्टर्स. अमेरिकन सपोर्टर का व्यू पॉइंट है पहला, that fundamentals of American economy is too strong. Fundamentals of US economy is too strong, and US will remain a superpower, and US will remain a superpower. पहला point, a superpower. दूसरा point, that America is still the leader in high-end technology areas. And that will keep American hegemony afloat. That will keep American hegemony afloat, मतलब ये hegemony continue रहेगी.
or continuing. Then 3, dollar is still the most preferred currency of international trade. Dollar is the most preferred currency of international trade. और चूंकि डॉलर इंटरनेशनल ट्रेड के मोस्ट प्रेफर्ड करेंसी है, तो अमेरिकन हेजेमनी इज नॉट लाइकली टू गो अवे एनी टाइम सून. It has the best research and development base of the world.